हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Simple majority system. There is a most important simple majority system in that case of a single member constituency, the person or the candidate is getting to the highest number of vote is declared elected. The result is decided by the majority of the votes and secured by a candidate. Many a time in the system there is a multi-coordinate contest as the number of candidate is more than two. There are the case of 4 or 5, even more than is a 5 candidate is a contest. In such a situation, a candidate with even less than 50% of the total votes get elected. Such cases are very often to be found in India and elsewhere. The system of simple majority system is prevalent in the Britain, USA, Canada, and some other countries. The simple majority system is also called to the first past the post system. Member of our Lok Sabha and State Assembly are elected by this system. The most important topic here arrive. There is a proportional is a representation system. What do you mean to the proportional representation system here? The system of proportional representation is the elected device to be ensure the representation for all section of the people more or less is a proportion their voting strength. Under this system, any group, whether it is a political party or interest group, will be insecure. The representation is a proportion into the popular vote it is obtained. J.S. Mill was ardent to the advocate of proportional is representation. He said, in any real equal democracy, every or any section would be represented not disproportionately, but the probability is a majority of the elector would be away have a majority of representatives, but a minority of elector would be away have a minority of representative. This system ensures that the number of seats a political party get in a legislatures is the should be in a proportions to be support of the popular vote. Sometime in the simple majority system, it is a seen that is a party get a more seat in the legislatures even though it is a receive less percentage of votes, or a candidate with a even less than 50% of votes is a declared elected. For instance, is the India in 1970 Lok Sabha election, Congress pulled only 76% of vote, and it is a managed of 351 seats out of the 522 seats, and that is even with the less than 50% votes. Congress won to the 68% of the seat in the Lok Sabha. This limitation of the first past and the post system may be removed through the proportional to representation system. Other two methods by which is the proportional representation is secured. First here, the single transferable vote system. It is also called to the Hare system of the entrance teams. According to the single transferable vote system, each voter can be cast only one vote which can be transferred to other candidates if necessary according to the preference of the voter. Therefore, this system is also called the professionalist system. This system works under following condition. The first condition here, every constituency should be a multi-member constituency electing 3 or more members. And second here, a voter has only single effective vote which may be a cast the other to the preference of first, second, third, or may be preference, and there is the candidate. The voter right to the 1, 2, 3 and 1 there against the name of the candidate of his choose. But the voter cannot be cast all the preference in the favor of only one candidate. In order to be elected to a candidate must be contain quota of votes. The quota is determined by dividing the total votes cast by number of seats in the constituency. There is a quota here. A formula arrived. The total number of votes polled and total number of the seat in the constituency plus 1. There is a formula here. For instance, if a number of seat is a constituency is a 3, or total number of votes cast is a
12,000, the quota will be. The counting of votes began with the first performance votes. A candidate secured to the prescribed quota is the basis of the first performance vote in a declared elected and his the scrubs votes. If any are transferred to be a candidate having second preference or indicated on the ballot paper and so on. If one or more seats are left vacant because some candidates do not score the required quota, the candidate getting to least number of votes are eliminated and their votes are transferred according to the preference of the voter. And this system has adopted in India for the election of the member of the Rajya Sabha and the state legislative council. The method is also followed for the election of President of India. And the next year list system. This is another method of proportional to the representation under this system. Large multi-member constituency are formed and any candidates are elected from each constituency. Each political party is submit a list of the candidate for the election from a particular constituency. A voter votes not being visually but it is a list of the candidate of different is a political party. These votes are indivisible if your four representatives are to be elected from the constituency. The voter has no option to cast two votes on the one list, two on the other list. These voters has to be elected all the four candidates from either of the list. A quota is determined and the candidates are declared elected according to the quota votes is squared by the political party. A party entitled to be 3 seats according to the quota will be declared the first 3 candidates on it is a list elected. There are two forms of the list system, the bonded list and the free list. And in the bonded list, the voter no choose or expect to the endorse or reject the entire list of candidates and prepared by a political party. But in a free list, their voters will be electing their list can give his over one order to performance for the candidate. The list system is followed by the election in a स्विट्जरलैंड. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामान्य बहुमत प्रणाली. सामान्य बहुमत प्रणाली के अंतर्गत किसी एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है. क्योंकि भारत में देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलता है वही निर्वाचित घोषित भी होती है. कई बार इस प्रणाली में बहुकोणीय मुकाबला भी हो जाता है यदि प्रत्याशी एक से अधिक हो तो. ऐसे भी कई उदाहरण है जहां 4, 5 या उससे भी अधिक प्रत्याशी होते हैं. इस स्थिति में संपूर्ण मतों के 50% से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय होता है. भारत में आम चुनाव में ऐसा ही देखने को मिलता है. सामान्य बहुमत प्रणाली जो है ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा और अन्य देशों में भी प्रचलित है. यानी भारत ने भी उन लोगों से ही जो है अपना लिया है. इस प्रणाली को हम फास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं और हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसी प्रणाली से चुने जाते हैं. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली. आखिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है और इसका क्या हमारे जो है फ्रेंचाइजी में इसका क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइजी में इसका क्या महत्व रखता है. देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत लगभग सभी वर्गों में प्रतिनिधियों के चुने जाने का प्रयास किया जाता है ताकि कम से कम हर वर्ग की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है. देखिए, अगर हर क्षेत्र के व्यक्ति जो चुने नहीं जाएंगे तो उस क्षेत्र से जो है समस्याओं से सरकार अवगत नहीं हो पाएगी. क्योंकि कहते हैं जो भी कोई क्षेत्र के व्यक्ति चुने जाते हैं तो उस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि होते हैं और उस क्षेत्र के जो समस्याओं से वो भली भांति उनको ज्ञान होता है. इसलिए हर क्षेत्र से चुना जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस प्रणाली में कोई भी समूह, चाहे वो राजनीतिक दल के हो या फिर हित समूह, अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व निर्वाचित करवा सकता है. कहते हैं इसमें सबसे पहला विचार J.S. मिल्स ने साफ शब्दों में इस बात को प्रेजेंट करने की कोशिश भी किया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एक महान समर्थक थे. उनको ये मानना था कि बहुत अच्छा है और उनके शब्दों में ये बात साफ कही गई थी कि किसी भी वास्तविक लोकतंत्र जिसमें समानता पर बल दिया जाता है
किसी भी अथवा प्रत्येक वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस वर्ग के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होगा उसको बहुसंख्यक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। लेकिन जहां अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या कम होती है वहां उसके प्रतिनिधि भी बहुत ही कम ही होंगे। दूसरे शब्दों में इस निर्वाचन व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक दलों को उतनी ही सीटें मिलती है जिस अनुपात में से मत प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य बहुमत व्यवस्था में यह कई बार देखा गया है कि एक दल को विधानमंडल में सीटों तो अधिक प्राप्त होती है लेकिन उसे प्राप्त मतों का प्रतिशत कम मिलती है, क्योंकि वहाँ 50% से कम वोट पाने वाली भी निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। कभी कभी सामान्य बहुमत प्रणाली में ऐसा भी देखने को मिला है कि एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पार्टी को सीटों तो बहुत मिल जाती है किंतु उसके वोटों का प्रतिशत अपेक्षित बहुत कम होती है। यहाँ तक कि 50% भी कम प्राप्त मतों के बावजूद भी वो पार्टी सीट जीत लेती है। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 46% वोट मिले थे, जबकि उसे 522 में से सिर्फ 351 सीटें ही प्राप्त हुई थी और यह वोटों का प्रतिशत जो 50% कम था, जबकि सीटें 66% मिल गई थी। और इस कमी के अनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा सुधारने का प्रयास भी किया जा सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होती है एकल संक्रमण मत प्रणाली, कहते हैं इसे हायर सिस्टम अथवा आंध्र योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, यानी एक मतदाता सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकारी होता है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने इस वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को भी बदल कर दे सकता है। इसके लिए उसे मतपत्र पर अपनी वैधता दर्ज करनी पड़ती है और यह प्रणाली निम्न विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में 3 अथवा उससे अधिक प्रत्याशी का होना आवश्यक होता है। दूसरा होगा ये कि एक मतदाता वैधता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशी को भी दे सकता है, किंतु उसके लिए उसे मतपत्र में 1, 2, 3 अथवा इससे आगे तक अपनी इच्छा अनुसार वैधता निर्धारित करनी होती है। मतदाता अपनी सभी वैधता एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकता है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट घ है, जिसमें वैधता क्रम में सबसे ऊपर आने वाली प्रत्याशी को ही उसका वोट मिलता है। किंतु यदि किसी स्थिति में 2 प्रत्याशी बराबर मत प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी को वोटा होता है कोटा निर्धारित करती है, यानी कोटा से किया जाता है। उस कोटे के आधार पर जिसकी वैधता सबसे पहले आती है उसे वोट मिल जाता है। कोटा अगर निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जैसे कि कोटा है और आप देखोगे डाले गए कुल मतों की संख्या +1, कुल संख्याओं की संख्या +1। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोटा के रिगार्डिंग होगा डाले गए कुल मतों की संख्या बटा कुल सीटों की संख्या +1। तो +1 नीचे लेना है और उसके बाद इसको +1 ऊपर रखना है। मान लीजिए किसी चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 3 है और कुल डाले गए मतों की संख्या 20,000 है, तो कोटा क्या होगी? देखिए कोटा क्या होगा, ऊपर हमने 20,000 ले लिया और नीचे 3 + 1 ले लिया, यानी टोटल कितना हो गया 4। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आया? ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया देख लो, यहाँ पर आ गया 5,000। लेकिन 5,000 में हमने एक प्लस भी तो करना है, तो एक प्लस करके हमने 5,000 एक वोट कर दिया। तो कभी कभी यदि कोई प्रत्याशी उस कोटे को नहीं पहुंच पाते हैं तो उस कोटे को खाली से छोड़ दिया जाता है और चुनाव की यह प्रणाली राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। और यही प्रणाली भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनाई जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये कोटा का सोल्यूशन है वो इंग्लिश में नहीं था, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको हिंदी से नोट कर सकते हैं कि इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सीमित मत व्यवस्था। कहते हैं यह व्यवस्था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य पद्धति है और इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसमें कम से कम 3 प्रत्याशी होते हैं तथा एक मतदाता एक प्रत्याशी को एक वोट दे सकता है। इसके बाद हर मतदाता को सीटों के अनुसार वोट घटते जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 सदस्यों को चुना जाना है तो ऐसे मतदाता चाहे तो 2 या 3 प्रत्याशियों को अपना वोट डाल सकता है, किंतु वह अपने 5 वोट सिर्फ एक ही प्रत्याशी को नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग से कम एक प्रत्याशी का स्थान सुरक्षित बनाया जा सके और इस तरह उन 5 में से
कम से कम एक सीट के जो है अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित हो जाती है। और इस प्रणाली के अधीन यदि एक सीट के लिए 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हों तो उसमें सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। किंतु यदि 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उनमें किसी भी बहुमत प्राप्त नहीं किया है तो इस चुनाव को पुण्य कराया भी जाता है। जो द्वितीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव के कुछ ही दिनों बाद मतदाताओं को पुण्य वोट डालना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मिनोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो व्हाट यू मीन टू द अदर मिनोरिटी हियर? Apart from proportion to the representations and some other electoral method has also been to be devised to ensure the adequate representation to the minority group in the legislature. This system of minority representation are flowing. The first point here is a cumulative voter system. According to this system, a voter has many votes as the number of seats in the constituency. The voter has an option. He or she can be cast vote for all the candidate or concentrate all his or her vote for just one candidate. For example, if 5 members are to be selected, their voter may be give his or her vote to be only one candidate or distribute it among a few or all candidate. This system is therefore many provide as a opportunity to the well-organized minority to be elected its representative by the accumulating all its votes in a favor of one candidate. The second point here is a limited vote plan. This system is adopted in the multi-member constituency for where is the minimum of 3 candidates are to be elected. Under this system, every voter can vote for a more than one candidate, but he or she cannot vote for all the candidates, and that is why it is known as the limited vote system. For example, if there are 6 seats as a constituency, every voter will have a right to vote only 4 candidates. The voter has to vote to different candidate of his or her choose, but he or she cannot vote for more than 4 candidates. हमारा जो अगला टॉपिक आया है अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त विधानमंडलों के अल्पसंख्यकों के समूचे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ अन्य तरीके भी ढूंढे निकाले हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली कुछ इस प्रकार दर्शाई जाती है। पहला तो यही दर्शाती है कि बहुसंख्यक मत प्रणाली। इस प्रणाली में मतदाता जो है उतने ही मत देने का अधिकार रखता है जितनी निर्वाचन क्षेत्र में सीटें निर्धारित होती है। इस प्रणाली में मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं। कोई भी महिला अथवा पुरुष मतदाता अपने सभी मत प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर सारे के सारे मत एक ही प्रत्याशी को भी दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 सदस्य चुने जाते हैं तो मतदाता अपने 5 मत 5 प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर 5 मत एक प्रत्याशी को दे सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में एक संगठित अल्पसंख्यक समूह अपने मतदाताओं में जो है ग्राम सहमति बनाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में सारे मत जो है दिलवा कर उसे जितवा भी सकता है। तो ये बहुत साधारण मेथड है जिसमें कोई भी प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है। उसके पश्चात सीमित मत प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली उन निर्वाचन क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ 3 या 3 से अधिक सदस्य का चुनाव होना होता है। इसमें एक मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी को मत दे सकता है परंतु सभी प्रत्याशी को नहीं, इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटें हैं तो प्रत्येक मतदाता 4 प्रत्याशी को मत दे सकता है, ना कि किसी एक प्रत्याशी के सारे मत। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हियर द सेकंड वॉलेट सिस्टम। व्हाट यू मीन टू सेकंड वॉलेट सिस्टम हियर? इन द इलेक्शन there are only 2 candidates contested election for the single seat. The one who scored a clear majority at least 50% plus 1 is declared selected. But when there is a more than 2 candidates, it may be a case that none of the candidates score on a absolute of majority. In this case, second ballot is added, which means to vote are again cast after few days. In this second ballot, only 2 candidates who had issued the maximum the member of vote in the first poll remain in the field. After voting, one who is scored more than 50% of vote in the declared elected. There is the most important here.
For example, in a constituency, 3 candidates are contesting. There is an election. The total number of the vote polls are the 12,000 vote. The candidate A is sure to the 5,000 vote. There is a candidate B is secured to the 4,000 vote, and candidate C is the 3,000 vote. In such a situation, no candidate get a seat or majority than 6,001 votes, which is necessary holding of second wallet. The candidate in the case of candidate C who has scored least number of votes is a dropped. As such, there is a contest now remaining is a between A and B. If B secure the majority at the second poll, then a B and not a A is the declare of successful. This system is a practice is the France for the election and president and national assembly also. उसके पश्चात हमारे समक्ष पुण्य मतदान प्रणाली। देखिए पुण्य मतदान प्रणाली होती क्या है। कहते चुनाव में यदि किसी सीट के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो तो जो है सपक्ष बहुमत 50% प्लस 1 प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय होता है। ठीक है, परंतु 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी होने पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी प्रत्याशी को सपक्ष बहुमत न मिला हो और इस स्थिति में पुण्य मतदान कराया जाता है। इस पुण्य मतदान में अधिकतम जो है मत प्राप्त करने वाले 2 प्रत्याशी के लिए मतदान किया जाता है। मतदान के बाद 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय होता है। उदाहरण के लिए अगर एक बात देखें, यदि किसी विधानसभा सीट के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और इसमें कुल जो सीट थी जो वोट डालने वाली थी वो थी 12,000 वोट डालने थी। प्रत्याशी ए को जो है 5,000 वोट मिला है, प्रत्याशी बी को 4,000 मिला है, प्रत्याशी सी को 3,000 वोट मिले हैं। तो इस स्थिति में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है जो कि 6,001 था, वोट नहीं मिल पाया है। अंततः पुण्य जो है मतदान अवश्य हो जाता है। प्रत्याशी सी जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं को अलग करके प्रत्याशी ए और बी के दोनों मतदान कराया जाता है। यदि पुण्य मतदान में बी को अधिक मत मिलते हैं तो वह विजय होता है। यह प्रणाली फ्रांस में राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के लिए उपयुक्त किया जाता है, जो कि काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और वहाँ पर मतदान करने की प्रणाली भी है। तो इसी के साथ जो है हमारा व्यास मताधिकार जो थी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो उसको समझा भी होगा, सोचा भी होगा और जाना भी होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये कि ये वीडियो जितना हो सके दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने के लिए आपको अग्रसर होना है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को दोबारा देखना चाहोगे और यूट्यूब पर सर्च करोगे तिरपान स्टडी सेंटर तो आ तो बेशकली जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है यूट्यूब जो है नाम वहाँ गलत कर देगा, तिरपान के जगह त्रिपुरा कर देगा, जो रिसर्च में नहीं आ पाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही भलाई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे जो भी आप टॉपिक देखना चाहोगे इसके मेन लिंक पे आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको हर एक वीडियो जो है आसानी से उपलब्ध रहेगा। इसमें जो भी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा उसको देख के समझ के जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो।